Hello everyone, this is Rashid Khan from LPO Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class 7. We have to go through the remaining topic of chapter number 7, that is. Yes. So maximum and minimum temperature are those particular type of a temperature that can be measured at the very morning as well as this can be measured at the noon too. Be measured by minimum and maximum thermometer. That means the temperature which is noticed in the very morning, it is the minimum temperature, and at the noon it is the maximum temperature. So that temperature will be measured by a thermometer. This thermometer is said to be what? Minimum and maximum thermometer. Is it okay? Minimum and maximum thermometer. But before going to the next one, some of the students were absent. I will recall the topic whatever I have done before the day. That is 2-3 terms are there. First one is weather. What is weather we can call? Weather is what? It is the day-to-day condition of a atmosphere of a particular place. That is called weather. Weather is what? Weather is the day-to-day condition of the atmosphere of a particular place. That is called as a weather. Next one is meteorological department. What is meteorological department? Whatever the information reaches us in the form of a temperature, rain, winds, whatever the atmospheric conditions occur, they can be measured by or this can be observed by these meteorological departments. They inform us about what is going on in our surrounding. That is called as meteorological department. That means what they are trying to inform about the weather, climate and the conditions occur in our surrounding, in our atmosphere. That can all these measured by a meteorological department. Who is this? Yes, Utkarsh. Tell me what happened. Now here is a rain gauge. What is the rain gauge? Rain gauge is a tool. It is a measuring tools of a rain. How much amount of rains happen last 24 hours. Right? ये बताता है रेन गेज कि हमारा 24 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है वो कितना हुई है. आप देखते हो कभी कभी ये 50 mm, 50 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर ऐसे मेजर किया जाता है. तो ये मेजरमेंट किससे होता है? रेन गेज से होता है. ये रेन गेज है जो हमें बताता है कि कितना बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में. राइट. नेक्स्ट इज meteorological department is a government department, government undertaking department that tells us about that the information of weather, climate, the atmosphere, the wind, the temperature, the rainfall, whatever is going on, this can be said by the or informed by the meteorological department. And here is now the humidity. Humidity is what? The amount of a water vapor present in the air, that is termed as humidity. Now come to the next one, that is causes of day and causes of weather changes. I think what causes the weather change? The next is what causes weather change? How the weather gets changed? An element of yes, बोलिए. हाइग्रोमीटर वही होता है जो बताता है ह्यूमिडिटी को. हाइग्रोमीटर
जो ह्यूमिडिटी को मेजर करे। ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट in our atmosphere, that is called humidity. For measuring the humidity there is an instrument called as a hygrometer. इसी हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? Okay. Now the next one, that is what causes the weather change. Weather change is caused due to the different reason, but one is the most important reason is what? That is sun. Sun, according to the sun, are surrounding the sun on which the earth revolves. sun के चारों तरफ क्या करता है? अर्थ रिवॉल्व करता है। इसकी वजह से जो हिस्सा या जो पार्ट सन के बिल्कुल सामने आता है अर्थ पे, वो अर्थ पे क्या रहता है? डे रहता है। और जो हिस्सा दूसरी तरफ डार्क में आता है, वहां पे क्या रहता है? नाइट रहती है। राइट? सन के सामने जो पार्ट आ रहा है वहां पे क्या रहता है? डे रहता है। और जो चीज अंधेरे में रहती है या वहां पे लाइट नहीं जाता है, वहां पे क्या रहता है? रात रहती है। क्लियर है ये? सबको ये क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब इस केस में क्या होता है? जितना अर्थ का पार्ट रोटेट करता है, वो अर्थ का पार्ट क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा कभी कभी सामने आता है, कभी कभी बहुत कम सामने आता है। ये रोटेशन की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ क्या करता है? आपका ये अर्थ है और रोटेट करता है ऐसे वैसे, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। भी करता है, ऐसे कर करके रिवॉल्व भी करेगा। किसके? सन के अप्रॉक्स। अगर ये सपोज करिए कि सन है, तो इनके चारों तरफ क्या करेगा? ये रिवॉल्व भी करेगा। और रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा कि इनके बहुत सारे पार्ट क्या होते हैं? थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे सपोज करिए कि यह सन है, तो इस जगह पे लाइट ज्यादा मिल रही है, इस पे थोड़ा कम मिल रही है, इस पे और कम मिल रही है, इस पे ज्यादा मिल रही है, फिर इस पे कम मिल रही है लाइट। सनलाइट जो आती है फोकस करती है। इस वजह से कभी कभी डे कैसे हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। कभी कभी डे बहुत बड़े हो जाते हैं। इन केस ऑफ समर दिन कैसे होते हैं? बड़े हो जाते हैं, रात छोटी होती है। और इन केस ऑफ विंटर दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी वेदर कंडीशंस हो रही हैं या वेदर कॉज कर रहा है, ड्यू टू ओनली वन रीजन, और वो क्या है? दैट इज सन। सन की वजह से ही क्या हो रहा है? वेदर चेंज हो रहा है। वेदर कैसा है आज का वेदर? क्योंकि टेम्परेचर कम है तो वेदर कैसा है? अभी कूल लग रहा है हमारा वेदर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी यही टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो गर्मी बहुत होने लगेगी, ह्यूमिडिटी होने लगेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी जब, तब हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। और बहुत ह्यूमिड कंडीशन कॉज कर रहा है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। So what we can say, what is the climate? Climate is what? Climate, it is a set weather pattern of a set weather pattern of a particular place for a long period of a time. जैसे हमारे वहां क्या रहता है? ठंडी बारिश और गर्मी रहती है, तो ये हमेशा ऐसे रहता है, हमेशा वेदर चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर पूरे साल बारिश होती रहे, पूरे साल गर्मी होती रहे या पूरे साल ठंड रहे। हमारे वहाँ क्या रहता है? बारिश होती है, गर्मी रहती है, ठंडी रहती है। तो ये सेट वेदर पैटर्न ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसी को हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। क्लाइमेट इज व्हाट? क्लाइमेट इज अ वेदर पैटर्न, और इट इज अ पैटर्न ऑफ अ वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है इंडिया का, तो दूसरे कंट्री का कैसा होगा? या बगल के जो सिटी है, सिटीज का नहीं, कंट्री का ही, ज्यादातर कंट्रीज में ऐसे
क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। तो देयर आर द नंबर ऑफ चेंजेस, देयर आर द नंबर ऑफ क्लाइमेट टेक्स प्लेस। सो ऑन दैट बिहाफ देयर इज a different type of a climate take place in our into our conscience. There are the number of climate. What are these? First of all, polar climate, polar climate. Second, the temperate climate, temperate climate. Third one is tropical, tropical climate. Fourth one is the desert climate. So what is a polar climate? As we know, polar, the place where all the years the ice snow takes place, right? The ice falls. Are you listening? आवाज आ रही सभी को? Okay. So the polar climate are those particular type of a climate where there is a extremely cold. This climate is what? It is a extremely cold and dry. Why? Because there is always snowfalls takes place all the years, right? And might be there is a very light rain, or might be the light could not be takes place for all those years. Here is a slightly rainfalls happen, or sometime rainfall happens, but most of the years there is a ice or snowfalls takes place. Why? Because it is extremely cold and there is a dry places. Such climate are termed as polar climate. And the second one is temperate climate. Temperate, as you know, the climate which is mostly or extremely hot. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमेशा ज्यादा हॉट रहता है, या बहुत ज्यादा ना हॉट रहेगा ना बहुत ज्यादा कूल रहेगा। यहाँ पर ट्रॉपिकल है, हाँ टेम्परेट। दिस इज नॉट वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड, दोनों बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो भी नहीं होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जहां पे मॉडरेट टेम्परेचर हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेट क्लाइमेट है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। इट इज हॉट एंड ह्यूमिड and it is also having a dry air. Why? Because recently here is a rains happen sometimes, that means slightly rains happen. If the slightly rains happen, so there is always the earth or this climate faces always sunlight. And if the sunlight always faces, its temperature might be got very high, and that is why here is this type of a climate shows the hot and a humid condition. Clear? दूसरा है डेजर्ट वाला। डेजर्ट क्या क्या होता है, डेजर्ट में यहां पे भी क्या होती है, यहां पे भी बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होगी तो ये क्या होगा, ये बहुत हॉट होगा। Recently sometime the rains happened, due to which the climate got very hot and humid. Why? Because if there is no air or such no dry air are always flow. Why? Because there is no water and water vapor in the air, so that type of air is called as a dry air. And temperature got very high, due to which it is a very hard
That means there is no rainfalls happen oftenly. Sometime rainfalls happen, or even might be sometime the rainfalls happen. That is why it is called as climatic conditions. दो ऐसे हैं जहां पे पोलर है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, ये एक्सट्रीमली क्या होंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड होंगे, और डेजर्ट में एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन होता है, राइट? एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है क्योंकि ये एक्सट्रीमली हॉट होता है और ये एक्सट्रीमली कोल्ड होगा। क्लियर है? अब ये जो रीजन है या क्लाइमेट है, ये शो करता है क्या? ये शो करेगा डिपेंड्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स। द क्लाइमेट ऑफ रीजन्स डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज मीन्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लाइमेट हो, वहां पे बहुत सारे फैक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं। और ना ज्यादा कूलर होंगे, यानी बहुत ज्यादा हॉट नहीं होगा और बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं होगा, यानी कि वो कैसा रहेगा, एक क्या कहते हैं उसको, एवरेज टेम्परेचर रहेगा या एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, जो बहुत ज्यादा हीट भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा कूल भी नहीं होगा। उसको हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जहां पे ट्रॉपिकल वाला देखेंगे, ट्रॉपिकल वाला हॉट होता है, ट्रॉपिकल वाला क्या होगा, वेरी हॉट और ह्यूमिड होगा। लेकिन एक्सट्रीमली हॉट कहेंगे तो कौन आ जाएगा, डेजर्ट। वेरी हॉट एंड ह्यूमिड ये किस में आएगा, ट्रॉपिकल में। और जब हम लोग एक्सट्रीमली हॉट कहेंगे और ड्राई एयर कहेंगे तो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा डेजर्ट वाले में। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहां पे देखेंगे क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे क्लाइमेट डिपेंड करता है? फर्स्ट है अमाउंट ऑफ अ सनलाइट इट गेट्स। अमाउंट ऑफ सनलाइट इट गेट्स, ये डिपेंड करता है, कोई भी आपका क्लाइमेट हो, डिपेंड करता है हाउ मच द लाइट और सनलाइट इट ऑब्जर्व या इट ऑब्टेन। कितना इसके पास लाइट आएगी, इसी वजह से वो ज्यादा हीट होगा या उसी वजह से वो ज्यादा कोल्ड होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब वो सनलाइट को फेस करेगा तो टेम्परेचर